हाय फ्रेंड्स, होप ऑल आर डूइंग वेल। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो हमारा था टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लीन। ठीक है। तो आज की जो हमारी 21st सेंचुरीज है उसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें कानबान, स्टेबिलिटी, 5 फेजेस उनका, वेस्ट, जीआईटी एंड काइजन। ठीक है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के बेसिकली मोर देन 25 टूल्स हैं, अप्रॉक्सीमेट 35 टूल्स इज देयर। ठीक है। तो उनका डिटेल में टूल्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन सम टूल्स की डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जैसे कि हमने टेक टाइम भी एक टाइप का उसका टूल है, ऑलरेडी उसका हमने वीडियो डाल चुके हैं। एंड जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी हम एक एक करके ऑल टूल्स आर कवर in our this lean manufacturing training. Okay, then first we start the our topic from history of lean. Okay, before starting the lean concept understanding, we know about the history ki how to develop lean manufacturing, from where to where. First, history of lean manufacturing. Okay, then today we cover on the part one of lean manufacturing, because someone is says within 10 minutes you know about the lean manufacturing, but it is difficult to understand within the 10 minutes. Okay, then that's why I made two part of this video. Okay, first part I uploaded and then wait for the second. Like in 20th century, lean manufacturing is a wide range. Like lean manufacturing is an umbrella, and in this umbrella many tools is there, like you know about Hijunka, TechTime, A3 problem solving method, supermarket, Gamba, value added, TPM, standard work, pull production, Andon, Kaizen, Kanban, cellular manufacturing, 5S, one piece flow, and continuous flow, JIT, TPS, Toyota Production System, Judoka, TQM, Total Quality Management, SMED, Single Minute Exchange of Die, 7 Waste, Value Stream Map, Visual Factory, and Pokayoke. There are many tools is there in lean manufacturing. Then we discuss in detail in next videos, and today we just only about the history. Okay, then in lean history we just cover in two part. From part 1 we started from 16th century to 19th century, from arsenal Watson arsenal to Ali Whitney, Frederick Taylor, and Gilbert. ठीक है, these three are giving the many ideas to industrial engineering and lean manufacturing. And in second part we cover Henry Ford modern assembly line concept to the lean manufacturing concept, कि how to develop from interchangeable part to lean manufacturing. This is the all era of history that I cover today topic. Okay, let's start. First 16th century is the Venice Arsenal. It is a shipyard manufacturing company, and Venice Arsenal is the Italian arsenal. It is a complex of former shipyard. तो एक शिपयार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी में हमारे आर्मरीज क्लस्टर्ड इकट्ठा होके एक गैलीज क्रिएट होती थी. एंड गैली मीन्स दैट कि नवल शिप्स, स्मॉल नवल शिप्स दैट hold the guns and all the armories. Okay, and due to World War time, this is a largest industrial enterprise in the history in the 16th century, one of the largest scale industry. And there in 16th century already used the mass production concept, and someone is only few person is know our mass production concept is started in 16th century. Okay, in 16th century the Venice arsenal ability to mass produce galley on almost assembly line process was unique for its time and resulted in possibly the single largest industrial complex in Europe prior to the industrial revolution. ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 4 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आए, बट उससे पहले ही वेनिस आर्सेनल ने मास प्रोडक्शन के कंसेप्ट को असेंबली लाइन कंसेप्ट से शुरुआत कर चुके थे. ओके, तो जैसे कि आप इसका एक फ्लो देख रहे हो, मटेरियल फ्लो, तो इन्होंने सिंगल पीस फ्लो एंड स्ट्रेट फ्लो में काम करके
और अपने लेआउट्स को चेंजेस करके ये सब इम्प्लीमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया कि 16,000 एम्प्लॉयज 16,000 वर्कर बिल्डिंग आ 16,000 worker building warship standardized parts using a production line approach to complete a ship a day। तो वन डे में वन शिप कंप्लीट करते थे उस टाइम पे भी अगर हम बात करें, विद द हेल्प ऑफ असेंबली लाइन प्रोसेस। तो इन्होंने असेंबली लाइन प्रोसेस को डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेज। ओके, फर्स्ट स्टेज इज फ्रेमिंग। Framing means we make a frame. When we start some preparation of a product, then just start our frame. Like in car, we are making the chassis, like is our base. Then first framing process. Second is planking. Planking process is the process in old era. We cut the large big trees and heat by fire, means natural fire, and then it is bended and then used in the ships, okay, directly, because large cutting machines, wooden cutting machines is not there in 16th century। क्योंकि वैसे मैं सिंपली वर्ड में बात करूं तो प्लैंकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता था कि जिसमें हम पुराने टाइम में क्या था कि कुछ हमारे पे बड़ी मशीन्स नहीं होती थी काटने के लिए और वुडन को बैंड करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस में। तो उसके लिए हम बैंडिंग के लिए प्रोसेस के लिए क्या करते थे कि बड़े बड़े पेड़ को काट के उनके बड़ी बड़ी पार्ट्स को एक वुडन फायर में हीट करते थे और जिससे वो बैंड हो जाते थे। उस बैंड को फिर हम अपने शिप्स में और गैलीज में लगाते थे। ठीक है, इस तरीके से प्लैंकिंग प्रोसेस को किया जाता है। उसका थर्ड स्टेप था हमारा कैबिन एंड फाइनल असेंबली। ठीक है, तो जिसमें हम सारे पार्ट्स को असेंबलीज को जोड़ के एक फाइनल क्रिएट करते थे। तो इस तरीके से कई स्टेज में वो डिवाइड था और हर स्टेज का जो एम्प्लॉय था वो वर्कर अपने में स्पेशलाइज्ड था। ठीक है, और स्टैंडर्ड पार्ट्स को जोड़ता था और जैसे ही एक पार्ट फिनिश होता था नेक्स्ट उसकी जगह ले लेता था। तो इस तरीके से उन्होंने इसको किया और दिस असेंबली अप्रोच, इसी असेंबली अप्रोच को यूज करते हुए हेनरी फोर्ड ने मॉडर्न असेंबली लाइन कंसेप्ट को शुरुआत की थी 20th सेंचुरी में। तो यहाँ से हमारा शुरुआत हुई थी अगर हम बेसिकली बात करें। ओके, नेक्स्ट इसके बाद बात करें हमारा 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में हमारे हॉर्न्स बैलेंस आए थे जिन्होंने, जो एक फ्रेंच गन्समिथ थे। तो उन्होंने एक कंसेप्ट यूज किया हमारा इंटरचेंजेबल पार्ट्स। मीन्स अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो हम पूरी मशीन ही खराब कर दें, नहीं, हम सब असेंबलीज क्रिएट करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट और उनको चेंज करके हम मशीन को दोबारा यूज कर सकते थे। तो उन्होंने इस कंसेप्ट को शुरुआत की और 1778 में उन्होंने फ्रेंच के लिए गन बनाना शुरू किया। देन उसके बाद हमारे आए एली विटनी। तो एली विटनी इज फेमस फॉर हिज इन्वेंशन फॉर कॉटन जिन मशीन। ठीक है, तो कॉटन के जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उसमें से जब हम डिफरेंट करते हैं कॉटन को, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एंड क्लोथ्स, ठीक है, एंड थ्रेड, तो उसकी इन्वेंशन की थी। बट ड्यू टू पेटेंट राइट इट इज नॉट मेंशन इन द एली विटनी नेम। ओके, एंड आफ्टर 1798 एली विटनी ने 10 गन्स डेमोन्स्ट्रेशन किया टू द यूएस कांग्रेस आर्म्स को। तो वो उसके बाद उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। देन he turned his attention into securing contract with the government and then उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला और जिसके बाद उन्होंने अपनी डेथ तक he continued making arms inventing until his death in 1825। उन्होंने इस इंटरचेंजेबल पार्ट कंसेप्ट यूज करके गन बनाना शुरू किया आर्मी के लिए, यूएस आर्मी के लिए। उसके बाद आए हमारे फेडरिक विल्सन ट्रेलर। ठीक है, फेडरिक विल्सन ट्रेलर जो थे हमारे फर्स्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को इन्वेंट करने वाले थे और ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। वो सॉट टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी एंड आल्सो फेडरिक विंसल फाइंड आउट द प्रोडक्टिविटी टर्म्स कि व्हाट इज योर इनपुट एंड व्हाट इज योर आउटपुट एंड व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी टर्म फाइंड आउट बाय द फेडरिक विल्सन टेलर एंड ही वाज द फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन द वर्ल्ड and Taylor was one of the intellectual leader of the efficiency movement and his idea broadly convinced were highly influent in the progressive era। तो अगर उसकी बात करें कि उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप को करके उसे बढ़ाया, ब्रॉडली कंसीव किया और हाईली इन्फ्लुएंस इन द इरा, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया इनका ये इंटेलेक्चुअल पॉइंट।
तो इनके जो वो थे हमारे फाइंड आउट कि इन 1911 सम ऑफ हिज टेक्निक्स इन हिज बुक, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उसमें कई सारी उन्होंने टर्म्स दी, एंड जो हाईएस्ट वोटेड हुआ, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट वोटेड द मोस्ट इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट बुक ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं सदी की सबसे इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट बुक में वोटेड हुई। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो आप इसे डाउनलोड करके और परचेज भी कर सकते हो नॉर्मली। एंड नेक्स्ट इनकी जो इन्वेंशन थी, तो इनके 3 मेन पॉइंट थे, बहुत सारी चीज़ें थी तो, बट मेन बेसिक जो आज के टाइम पे हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट था स्टैंडर्डाइज वर्क, कि व्हाट इज द स्टैंडर्डाइज वर्क, क्या होता है हमारा। एंड सेकंड इज द टाइम स्टडी एंड वर्क स्टैंडर्ड, कि व्हाट इज द मेथड टू डू दी टाइम स्टडी। एंड थर्ड इज मैनेजमेंट डिक्टोटॉमी। ओके, मैनेजमेंट डिक्टोटॉमी मीन्स वी नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, we just think about our perceptions and do our work conceivably, and you get the result. And it means clearly not focus on the result, you just do your work, and that work is do, and then you find out the result. ओके, मैं सीधा सा हम कहें तो हिंदी में कि हमें अपने रिजल्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए कभी भी, हमें अपने काम पे, अगर हम काम को सही तरीके से करेंगे तो रिजल्ट ऑफ कोर्स निकलेगा उसका। तो ये उन्होंने रिसर्च की मैनेजमेंट डिक्टोटॉमी। एंड देन उसके बाद आए हमारे फ्रैंक बंकर गिलबर्ट। ओके, फ्रैंक बंकर गिलबर्ट इज आल्सो एन अमेरिकन इंजीनियर एंड कंसल्टेंट एंड नोन एज अर्ली एडवोकेट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड पायनर ऑफ टाइम एंड मोशन। तो इन्होंने बेसिकली टाइम एंड मोशन स्टडी में फोकस किया था। कैसे, इसका एक एग्जांपल है हमारे पास कि एक वन मोर इन्फॉर्मेशन इज देयर, ही एंड हिज वाइफ लेनियन मोला, ये बोथ आर द इंडस्ट्रियल इंजीनियर एंड एफिशिएंसी एक्सपर्ट who contribute the study of industrial engineering in the field such as motion study and human factor। तो इन्होंने मेन इसमें काफ़ी रिसर्च की कि मोशन स्टडी एंड ह्यूमन फैक्टर ये दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक है, कि अगर हम मोशन स्टडी करते हैं तो ह्यूमन टू ह्यूमन फैक्टर चेंज होने से मेल फीमेल एज हाइट, तो क्या हमारे उसमें इफेक्ट पड़ते हैं। तो कई सारे इन्होंने रिसर्च की, जो हम डिटेल में जब लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल्स पढ़ेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था कि सर्व इन द यूएस आर्मी डूइंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आर्मी में भी जॉब की थी। एंड उसके बाद उन्हें एक असाइनमेंट दिया था कि रिड्यूस द टाइम ऑफ मेकिंग अ गन। ठीक है, तो उनको गन बनाने को कहा गया था। तो उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू एक हमारे वो थे इंडस्ट्रियल इंजीनियर आल्सो क्लॉड जॉर्ज, गिलबर्ट रिड्यूस द ऑल मोशन ऑफ द हैंड इनटू सम कॉम्बिनेशन ऑफ 17 बेसिक मोशंस। तो उन्होंने अपने जो गन हम बनाते थे उसमें 17 तरह के जो बेसिक मोशंस थे उनको रिड्यूस करके जो उसका टाइम था गन का उसको बढ़ाया, मतलब कम किया बनाने के, और वो जो टाइम था मोशन जिसको हम कहते हैं आज के टाइम पे वेस्ट, उसको वहां से एलिमिनेट किया। एंड दिस इंक्लूड द ग्रैब्स एंड ट्रांसपोर्ट लोडेड द होल गिलबर्ट नेम मोशन थर्बलिंग एंड गिलबर्ट स्पेल्ड बैकवर्ड विद लेटर th ट्रांसपोर्ट टू देयर ओरिजिनल लेट ऑर्डर। ही यूज्ड अ मोशन पिक्चर कैमरा, उन्होंने क्या एक मोशन पिक्चर कैमरा यूज किया था इसको जज करने के लिए, जिससे कि वो मोशन के वर्कर को जज कर पाए। तो इस तरीके से इन्होंने मोशन स्टडीज में हमें कंट्रीब्यूट किया और हमें सिखाया कि किस तरीके से हम ह्यूमन फैक्टर के थ्रू काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्रैंक गिलबर्ट बंकर। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है। ओके, आई थिंक यू get some knowledgeable part in this part 1, and thanks for watching. If you want next video, please like, subscribe and comment for more videos. Thank you so much. Have a nice day.